Hello friends, welcome to our channel, and today we are going to discuss about the entire syllabus of UPSC CSE 2021. I know there are various common queries in your mind that how to start the preparation, what to read, how to approach the syllabus, and what are the books to the reference. I am going to answer these questions in this video. Okay, starting for the any exam preparation, the most important thing is to know the detailed syllabus of that particular exam. And in UPSC, there are three stages which include the preliminary stage, the next is the main stage, and the third one is the interview stage. Now let's begin with the prelim, that is preliminary stage of a syllabus. Pre exam deal with a paper 1 and paper 2. So the paper 1 is of a 200 marks and it includes the following syllabus part. Okay, the first one is a current sorry the first one is a current event of a national and the international importance. The next one is history of a India and the Indian national movement. Okay, we have to know what is the history of India and what is the Indian national movement. The next one is India and a world geography, physical, social, economical geography of India and also the world. That is the complete overview of the geography related to world as well as India is a basic requirement of the preliminary exam. From the polity part, the syllabus include Indian polity and the governance, constitutional, political system, Panchayati Raj, public policy, rights issues, etc. Okay, the next one from the economic portion, the part includes the economy and the social development, sustainable development, poverty, inclusion, demography, social sector initiatives, etc. That is various topics such as the sustainable development, poverty, inclusion, demography, and the social sector initiative and different schemes are also the part of a pre-exam. The next one is general issues on the environment, ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization. Point to be noted that you have to know the general issues that are ongoing on the environment and ecology, various climate changes and biodiversity related issues, but it doesn't mean that you need a special type of a specialization. The basic knowledge is enough for the preparation. Okay, and the last one is a general sciences. Okay, the next paper of a pre deals with a CSAT. That okay, it deals with a CSAT, and this paper is of a 200 mark and it is a qualifying paper which includes the comparison in interpersonal skills including the communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and the problem solving approach, general mental ability related question and the basic numericals. ठीक है, from the numbers and their relation, orders of a magnitude of a class 10th level. Okay, the point to be noted that you doesn't need to be specialization on any particular topic. You can solve it as from the basic knowledge up to the class 10th level. Okay, the next one is a data interpretation which includes the charts, graphs, tables, etc. Okay, and it is also up to the class 10th level. The next one is पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो पेपर 2 होता है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है एंड अप टू 33% आपको मार्क्स उस पेपर में स्कोर करने पड़ते हैं. मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है और आपको 200 मार्क का 33% आपने स्कोर कर दिया तो भी मोर देन इनफ है, आप वो पेपर क्वालिफाई हो जाता है. और ये जो पेपर्स होते हैं प्री के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू द मेंस सिलेबस. तो मेंस के जो पेपर है वो मोस्टली मेंस में
9 पेपर्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से जो 2 पेपर्स होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। जो 2 पेपर क्वालिफाइंग जो होते हैं वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, दैट इज़ पेपर 1 ऑफ 300 मार्क्स का होता है, और कैंडिडेट कोई भी इंडिया के जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड जो पेपर 2 होता है उसमें कंपलसरी आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, और वो भी 300 मार्क्स का होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्वालिफाइंग पेपर। द नेक्स्ट इज़ अ पेपर ऑफ एसे। जो एसे का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, और जो कैंडिडेट ने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है फॉर राइटिंग द पेपर, ही कैन राइट द पेपर इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। नाउ जो पेपर्स डील करते हैं जनरल स्टडीज़ से वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द जनरल स्टडीज़, पेपर नंबर 1 ऑफ 250 मार्क्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। जो मेन कंटेंट है वो है कि इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी एंड द सोसाइटी। तो मेन जो GS1 का पेपर होता है वो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ अ वर्ल्ड एंड सोसाइटी से डील करता है। अभी इसकी डिटेलिंग हम देखते हैं। सो फर्स्ट वन इंक्लूड, जो इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम। तो जो इंडियन आर्किटेक्चर या इंडियन आर्ट एंड कल्चर का फॉर्म होता है राइट फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम का, जो आर्ट एंड फॉर्म का आर्किटेक्चर होता है या लिटरेचर होता है उसके जो साइलेंट एक्सपेक्ट है वो, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, टिल द प्रेजेंट इवेंट। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट है, कोई भी उस टाइम के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है या इशू थे वो भी इस GS1 के पार्ट में इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट वन इज़ अ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें क्या क्या मूवमेंट्स, वेरियस स्टेजेस थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे उस टाइम पे, और कौन से लीडर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस आए अप टू द प्रेजेंट, एंड रीऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हुआ कंट्री का, इस पार्ट से भी GS1 का सिलेबस डील करता है। उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड द फॉलोइंग इवेंट। अभी कौन से इवेंट, ठीक है, वो इंक्लूड करते हैं कि स्पेसिफिकली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, सच एज जो इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, रीड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज जैसे कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। तो जो इवेंट्स हुए थे फ्रॉम 18th सेंचुरी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे जो काफ़ी इवेंट्स हुए थे, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जैसे कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उस सारे का इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पे, वो भी पार्ट डील करता है GS1 के सिलेबस से, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ अ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो कोई साइलेंट फीचर्स जो है ऑफ इंडियन सोसाइटी वो भी GS1 के पार्ट से डील करता है। उसके साथ साथ वुमेन रिलेटेड इश्यूज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रोल ऑफ अ वुमेन इन अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ठीक है, पॉवर्टी रिलेटेड इशू, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशंस, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स और रेमेडीज। उसके साथ साथ सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, ठीक है, और वुमेन्स जैसे रिलेटेड इश्यूज से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रिलीजन, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखते हैं कि ज्योग्राफी पार्ट से कौन से पार्ट डील करता है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो भी GS1 के पार्ट में इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड विच इंक्लूड द साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया,
ठीक है। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है और वो कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज बाकी वर्ल्ड में भी मिलते हैं, स्पेशली द साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल phenomena such as earthquake, tsunamis, volcanic activity, cyclones, geographical features and their location, change in the critical geographical features including water bodies and ice cap and in flora and fauna and the effect of such changes। ठीक है। जो जोग्राफिकल जो फिनोमिना होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह और वोल्केनो वगैरह, ये सारे भी इंक्लूडेड है सिलेबस के पार्ट में। उसके साथ साथ जो जोग्राफिकल फीचर जो वाटर बॉडीज़ या आइस कैप से रिलेटेड है, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो सारा भी सिलेबस का पार्ट है फ्रॉम द GS1 पोर्शन। द नेक्स्ट वन इज़ द सिलेबस ऑफ अ जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो 250 मार्क का होता है और वो बेसिकली डील करता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। उनमें से कौन से टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जो जो आर्टिकल्स है उसमें या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका इवॉल्व कैसे हुआ, ये सारी की इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ बाकी जो है फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड द चैलेंजेस pertaining टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ अ पावर एंड द फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल एंड द चैलेंजिंग देयर इन। ठीक है। ये भी टॉपिक जो है GS2 से रिलेट करता है कि जो जो प्रॉब्लम्स या जो यूनियन लेवल या फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट्स, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पंचायत राज हुई, इस जो सारा पार्ट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेट करता है वो GS2 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ए सेपरेशन ऑफ अ पावर between the various organization, redressal mechanism and institution. The next one is a comparison of a India constitution to the schemes with the अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं वो बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने से मतलब कौन से कंट्री से हमने कौन सा फैक्टर या कौन सा एक्सपेक्ट लिया है या कंपेयर करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड द इश्यूज रिलेटेड टू इट। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड द फॉर्म्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड द रूल्स इन द पॉलिटी। ठीक है। इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं या NGOs होते हैं, उन सारा का जो फंक्शनिंग होता है या स्ट्रक्चर होता है वो भी पॉलिटी के पार्ट में इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट वन इज अ साइलेंट फीचर ऑफ अ द नेक्स्ट वन इज अ साइलेंट फीचर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट। ठीक है। ये जो है जो साइलेंट फीचर्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट के, रोपा एक्ट के। ठीक है। रोपा कौन सी ईयर में था वो भी आपको ध्यान रखना है। रोपा के क्या क्या साइलेंट फीचर है वो सारा भी सिलेबस का पार्ट है। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स एंड द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं उनकी क्या पोस्ट है, पावर्स है, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ साथ जो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी एंड वेरियस जुडिशरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग एंड द डिज़ाइनिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशंस, वो सारा भी सिलेबस का पार्ट है। उसके साथ साथ क्या दिया है कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस होती है या डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें NGOs, SSG जैसे जो ग्रुप्स होते हैं, वेरियस जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, उनका क्या रोल है, वो स्टेक होल्डर्स क्या है, उनका सारा भी डिटेलिंग इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम फॉर द वनरेबल सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द दिस स्कीम, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड द bodies constituted for the protection and the betterment of the this vulnerable section। तो जो vulnerable section है उनके रिलेटेड क्या स्कीम्स आई है या गवर्नमेंट ने क्या क्या नया उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या नई बातें या नए स्कीम्स लाए हैं, उनका सारा मैकेनिज़्म आइदर इट इज़ सेंटर और आइदर इट इज़ स्टेट, उनका भी
जो टॉपिक्स हैं वो भी हमको कवर करने हैं सिलेबस में। उसके साथ साथ जो इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए या जो भी इश्यूज़ हैं वो भी मेजर पार्ट है इस सिलेबस का। और वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ अ इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड द हंगर, ठीक है। पॉवर्टी हंगर जैसे जो इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट रिलेटेड जो एक्सपेक्ट है उनके रिलेटेड जो क्या चेंजेस आए उनके रिलेटेड क्या इशू है वो भी एक सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट इज अ important aspect of its governance transparency and accountability e-governance application model successes limitation and potential citizen charter ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द अदर मेजर्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जैसे ई गवर्नेंस हो या गवर्नमेंट में सिटीजन चार्टर हो या अकाउंटेबिलिटी या अदर कोई जो मेजर्स हैं उनके रिलेटेड भी यूपीएससी में पूछा जाता है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है तो सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ जो GS2 का पोर्शन होता है वो डील करता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, आईआर के पार्ट से डील करता है। तो आईआर में से कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एंड जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें रिलेशंस कैसा है वो हमको देखना है। उसके साथ साथ जो बायलैटरल और रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग है एग्रीमेंट है इन्वॉल्व करते हैं जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को, वो भी टॉपिक हमको कंसिडर करना के पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ इफेक्ट ऑन द policies and the politics of developed and the developing country on the India's interest Indian diaspora, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा के रिलेटेड जो भी इशू होता है वो भी हमको सिलेबस में कवर होता है। उसके साथ साथ जो डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है एजेंसीज है, ठीक है, वो भी हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका स्ट्रक्चर उनका मैंडेट वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डीलिंग विद द जनरल स्टडीज़ पेपर 4 वो भी होता है 250 मार्क्स का जो मेनली इंक्लूड करता है टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी एंड द इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कौन से पार्ट इंक्लूडेड है वो देखते हैं। तो पहला पार्ट है कि डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू हो या इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होते हैं GS3 के पार्ट में। उसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इशू अराइजिंग फ्रॉम इट एंड द गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। उसके बाद मेजर क्रॉपिंग पैटर्न in various part of the country different type of irrigation and the irrigation system storage transport and marketing of agriculture produce and the issues related to the constant, ठीक है। जो issues है related to the agriculture sector जैसे irrigation हो या irrigation storage system हो या transportation हो या marketing हो agriculture product का, उसके related issues भी cover किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ फार्मर्स के लिए फार्मर को कैसे यूज़ होता है वो भी जो है सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद देखा जाए तो issues related to the direct and the indirect farm subsidies and the minimum support price public distribution system objective functioning and limitation revamping issues of a buffer stock and the food security technology mission economy and the economy of animal rearing, मतलब जो भी फार्मर रिलेटेड इशू है जैसे पब्लिक सब्सिडी से लेके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है फार्मर को, उसके साथ साथ जो बफर स्टॉक के इश्यूज़ है या नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए फार्मर रिलेटेड इश्यूज़ में या एनिमल रियरिंग जो होती है उसके रिलेटेड जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है या इकोनॉमी कैसी उनको इकोनॉमिक के में कौन से प्राविधान लाए या बजट में कैसे कैसे उन गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोटेक्शन लाए या क्या क्या स्कीम्स लाए हैं वो सारा इस पार्ट में आता है।
उसके बाद है नेक्स्ट कि फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारा भी GS3 का पार्ट है। उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। LPG जो रिफॉर्म हुए थे उसके रिलेटेड भी या कोई जो नए चेंजेस आए हैं वो सारा आता है। उसके बाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड रेलवेज, एंड नेक्स्ट वन इज ए इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, क्या क्या नए एप्लीकेशंस आए हैं, क्या न्यू डेवलपमेंट आया है या इफेक्ट है एवरीडे लाइफ में, अचीवमेंट क्या क्या किए हैं इंडिया ने इन साइंस एंड फील्ड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, क्या क्या इंडिजनाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में, क्या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुए। उसके साथ साथ अवेयरनेस इन डिफरेंट फील्ड, जैसे कंप्यूटर IT फील्ड हो या स्पेस या कंप्यूटर रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो या इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं इन द IT सेक्टर, स्पेस सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड इशू है वो भी पार्ट कवर है। उसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी के जो इश्यूज़ है वो भी डील करता है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिलेटेड पार्ट भी GS3 में आता है, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो पार्ट है वो भी GS3 का पार्ट है। तो GS3 में सिक्योरिटी रिलेटेड क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, वो है कि रोल ऑफ अ लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब क्या रोल है एक्सटर्नल स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स का जो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड, चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ अ मीडिया, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द प्रिवेंशन। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद द टेररिज्म, वेरियस सिक्योरिटी रूल्स एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डीलिंग विद द पेपर नंबर 4 विच डील्स विद द टॉपिक ऑफ इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें क्या है, इसमें जो इथिक्स रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो इथिक्स का पेपर है और जो इथिक्स होता है और ऐसे होता है, उसके जो मार्क्स हैं वो मोस्टली मैटर करते हैं, क्योंकि जो GS के पेपर होते हैं वहाँ के जो आंसर्स होते हैं वो मोस्टली सब जन नियर अबाउट सेम लिखते हैं। तो अगर आपने इथिक्स और ऐसे में उसके साथ साथ ऑप्शनल में अच्छे से स्कोर कर दिया है तो आपका जो रैंक है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है, ठीक है। अभी देखते हैं एथिक्स का सिलेबस। तो एथिक्स के सिलेबस में फ्रॉम द टॉपिक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारे जो सब पॉइंट्स हैं उस हर एक पॉइंट पे आपकी पर्टिकुलर नोट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं अभी कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस। इस टॉपिक में से कौन से पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है इसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक रिलेशन, ठीक है। उसके साथ साथ जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसमें लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड द टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, जो ग्रेट लीडर्स के लाइफ से हमने क्या क्या लेसन सीखा है। उसके साथ साथ जो रिफॉर्मर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग द वैल्यूज़, एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, it influence and the relation with the thought and the behavior, moral and the political attitude, social influence and the prejudication, ठीक है। The next one is aptitude and the foundational values for the civil services, ठीक है, integrity, impartiality and non-partnership, objective dedication to the public servant, empathy, tolerance and compassion towards the weaker section, ठीक है। ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के रिलेटेड जो क्वालिटीज़ है उस पर आपको बहुत अच्छे से आंसर्स रेडी होने चाहिए और बहुत अच्छे से वो टॉपिक कवर होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इमोशन इंटेलिजेंस कंसेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट एंड देयर यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उसके साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मोरल थिंकर एंड द फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अ वर्ल्ड। द नेक्स्ट वन इज द पब्लिक
और सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका स्टेटस एंड द प्रॉब्लम्स, इथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसेंसस एज a resource source of ethical guidance, accountability and the ethical governance, strengthening of ethical and the moral values in the governance, ethical issues in the international relation and the funding and the cooperative governance. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी इन द गवर्नेंस, कंसेप्ट इन ऑफ अ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसॉफिकल बेसिक ऑफ अ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, codes of ethics, codes of conduct, citizen charter, work culture, quality of a service delivery, utilization of a public fund, challenges corruption, and the most important part which deals with the ethics is the case study, because in each and every आंसर द मस्ट इज़ दैट द पर्सन जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है वो केस स्टडीज़ मेंशन किया हो. अगर केस स्टडीज़ आपने मेंशन किया तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर में, और वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स गेन करने में वैल्यू एडिशन रहेगा. ठीक है. इस तरीके से उसके बाद जो लास्ट होता है ऑप्शनल होता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 होता है जो 250 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल जो पेपर 2 होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है. इस तरीके से जो मेंस का पूरे जो 9 पेपर है वो होते हैं. ठीक है. मेंस के जो 9 पेपर हैं वो होते हैं. वो टोटली कितने मार्क्स के होते हैं देखा जाए तो जो मेंस होता है 1750 टोटल मार्क्स होते हैं मेंस का कंसीडर करके, और उसके बाद अगर हम इंटरव्यू के स्कोर ऐड करें, ठीक है, वो होता है 275 मार्क्स का इंटरव्यू. और ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो पर्सन है जो इंटरव्यू दे रहा है वो कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है फॉर हिज इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू हिज प्रिफरेंस. इस तरीके से जो टोटल यूपीएससी का मार्क्स होता है वो होता है 2025. ठीक है. 2025 ये टोटल मार्क्स होता है. इस तरीके से हमने अभी देख लिया कि यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस कैसा होता है, और हमारे चैनल पे हमने काफ़ी कुछ न्यू अनाउंसमेंट है कि हम हमारे चैनल पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पब्लिश कर रहे हैं. उसके साथ साथ एक कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो, उन सारे जो सब्जेक्ट का एक कंप्लीट समरी हम अपलोड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसके साथ साथ एक आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक फ्री क्रैश कोर्स टाइप जो कोर्स है हम स्टार्ट कर रहे हैं. और इसके साथ साथ जो हमारा चैनल है उसमें हम काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रॉपर एनालिसिस भी अपलोड करेंगे, और टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे. सो फिलहाल हमने इनसाइड का जो डेली करंट अफेयर होता है उसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं. ओके. एंड डू स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल. अगर आपको ये पीडीएफ हो चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मैं मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड. डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.